Good morning, everyone. Wishing you a happy morning to all. I am Penku Nayak present here for you all to give you a short knowledge regarding revolution of India that occurs in different times to bring changes in our living, personal as well as social life. And also, before going to know different kinds of revolutions name, we must have to know about what is revolution. व्हाट इज़ इट्स मीन। रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है। अगर हम ये जानेंगे देन वी विल गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग ओवर द themes whatever I want to give you in today's lesson. Okay, so let's start. So here is, dear friends, I have told you that we have to understand the meaning of revolutions, what it means, क्यों ये वर्ड रिवोल्यूशन आया है। ओके, द वर्ड रिवोल्यूशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड रिवोल्यूसियो, REVOLUTIO, रिवोल्यूसियो, विच मीन्स ए टर्न अराउंड। इसका मतलब आप समझ लीजिए, ए टर्न अराउंड मीन्स ए लिटिल बिट चेंजेस ऑकर्ड विद इन ए शॉर्ट टाइम। कम समय में कुछ चेंजेस आना सोशल और पर्सनल और लिविंग लाइफ में, उसे कहा जाता है रिवोल्यूशंस। एंड डिफरेंट काइंड ऑफ रिवोल्यूशंस कम्स इन आवर इंडिया व्हिच आई विल से यू लेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रिवोल्यूशन, दैट इज व्हाट इज रिवोल्यूशन। ए रिवोल्यूशन हैव ऑकर्ड throughout human history and vary widely in terms of method, duration, and motivating ideology. That result include major changes in culture, economy, and social political institution, usually in response to perceived changes in social as well as personal life. It means revolutions entails not only mass mobilization and regime change, but also more or less rapid and functional fundamental social, economic or cultural changes during or soon after the struggle for state power. इसका मतलब ये है, रिवॉल्यूशन क्या है। रिवॉल्यूशन कुछ चेंजेस है हमारे सोशल पर्सनल लाइफ में, कुछ चेंजेस है जो कि हमें इंक्लूड करता है हमारे लाइफ को अच्छे से जीने के लिए। बिकॉज बिफोर इंडिपेंडेंस we have all know that the British people have taken all the things from our country like India, all the things, all the important and valuable materials to their own country, that is England. वो अपने साथ हमारे देश की सारी कीमती चीज़ें ले गए थे। तो हमारे भारत की उन्नति के लिए तरह तरह की चेंजेस आया है, जो कि बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी सुझाव रख के उसको लाने की कोशिश की है। उसी को कहा जाता है रिवॉल्यूशन। दैट मीन्स ए चेंजेस ऑकर्ड आफ्टर ए प्लान, ए चेंजेस ऑकर्ड आफ्टर ए थिंकिंग ऑफ द पीपल इन देयर माइंड, बॉडी एंड सोल, which will be bring a little bit changes in our social as well as personal life. Okay, so here is you can see different revolutions names. It has been given the name with the colors whatever we are using in our life, that is black revolution, golden revolution, brown revolution, grey revolution, blue revolution, silver revolution, white revolution, red revolutions, and golden fiber revolutions, green revolutions, pink revolutions, silver fiber revolution, yellow revolutions. Here is 13 revolutions name have been given, but I will say you about 16 revolutions names. They are father means जिन्होंने उस revolutions को स्टार्ट किए थे, और कौन से ईयर में ये हुआ था उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो कि हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके काम आएंगे. सो हियर इज, डियर फ्रेंड्स, वी कैन सी रिवोल्यूशंस इन इंडिया इन सीरियल नंबर, इट्स नेम्स, और कौन से प्रोडक्ट कौन से फील्ड में इसको लिया गया है, और इनका फाउंडर और फादर कौन है, और ये कौन से पीरियड में कौन से टाइम में हुआ है। बिकॉज एक ही साथ सारे रिवोल्यूशंस नहीं हुआ है, स्लोली इट हैज़ बीन मूव्ड एंड मोबिलाइज्ड एज रिवोल्यूशंस. ओके,
So first of all, we have to know that green revolution, it is a very important revolutions in our social life which will bring in the field of agriculture, and it has been started by Mr. M.S. Swaminathan in the year 1966 to 1967. Then second one is white revolutions. इसको कहा जाता है ऑपरेशन फ्लड. फ्लड मीन्स जो पानी बह जाता है बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण, उसे कहा जाता है वाइट रिवोल्यूशंस. वाइट रिवोल्यूशंस का क्या है इसका फील्ड? मिल्क और डेयरी प्रोडक्शन. एंड इट हैज़ बीन स्टार्टेड, द फादर ऑफ दैट रिवोल्यूशन इज नोन एज मिस्टर बर्गिस कुरीन, and the year is known as 1970 to 1996. Okay. Third one is blue revolutions, that is of fish and aqua, and the father of that revolution is Mr. Dr. Arun Krishnan in the year 1973 to 2002. Then fourth one is golden revolution. It is of fruits, honey, horticulture, as well as here is not mentioned, that is jute. जूट प्रोडक्शन को भी कहा जाता है गोल्डन रिवोल्यूशंस, एंड द फादर ऑफ दैट रिवोल्यूशंस इज नीपक तुजेत. It has been started in the year 1991 to 2003. Fifth one is silver revolution, and the field is egg, and the founder is known as Miss Indira Gandhi in the year 2000 onward. Sixth one is the yellow revolutions, and the field is oil seeds. The father of this revolution is Mr. Sam Pitroda, and it has been started in the year 1986 to 1990. Seventh one is pink revolution. Field is pharmaceutical, prawns and onion production. Father Mr. Durgesh Patel, and 1970s में इसका स्टार्ट हुआ था. Eighth one is brown revolution. The field is leather and cocoa, and father is known as Mr. Hiral Chaudhary, but the year has not given. That means revolutions उसी ईयर में हुआ था, ख़त्म हो गया, ये बात नहीं है, आज तक भी है. जितना ज़्यादा हो सके, जितना अच्छे तरीके से हो सके, बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट इज नोन एज इट्स रिवोल्यूशन. दैन नाइन्थ वन इज रेड रिवोल्यूशंस. रेड रिवोल्यूशंस किस में है? मीट और टोमेटो को लेके है. इनका फादर है मिस्टर विशाल तिवारी, एंड इन द ईयर 1980s इज वाज स्टार्टेड. देन अनदर वन इज गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशंस. पहले तो था एक गोल्डन रिवोल्यूशंस, अब आ गया गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशंस. ये है जूट प्रोडक्शन. मैंने आपको कहा था जूट वो गोल्डन रिवोल्यूशंस में भी आता है, गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशंस भी आता है. अगर आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ओनली गोल्डन रिवोल्यूशंस दिया है और जूट ऑप्शन दिया है तो आप कर सकते हो, और अगर गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशंस दिया है तो आप जूट को ही सिलेक्ट करोगे. ओके, एंड इट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1990. देन एवरग्रीन रिवोल्यूशन. एक तो ग्रीन रिवोल्यूशंस था एग्रीकल्चर को लेके. एवरग्रीन रिवोल्यूशंस मीन्स ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर. जो ग्रीन रिवोल्यूशन था वो बस हमारे मेन खेती जो होते हैं गेहूँ, चावल, इसी के ऊपर था. बट एवरग्रीन रिवोल्यूशन मीन्स all the agricultural field, whatever the production it comes from the agriculture, it is known as evergreen revolutions. And M.S. Swaminathan also its founder in the year 2014 to 2022 till now. Okay. Black revolutions means petroleum production or petroleum transport from another country to our country to make our country develop one. Okay. Then silver fiber revolutions, that is about cotton in the year 2000.
The next one is round revolution. It is known as potato. You can remember easily that potato मतलब आलू, आलू गोल होता है तो उसको राउंड रिवोल्यूशंस कहा गया है। ओके, उसी तरीके से आप इजीली याद कर सकते हो। 1965 में ये स्टार्ट हुआ था टिल 2005, अभी तक है। ये जो दिया गया है ये इसका मेन ईयर है, बट टिल नाउ all the revolutions are goes on. Then प्रोटीन रिवोल्यूशंस। प्रोटीन रिवोल्यूशंस इनका फादर है मिस्टर नरेंद्र मोदी, हमारे जो फॉर्मर एंड प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री लाइक इंडिया। एंड एग्रीकल्चर हायर प्रोडक्शन, हमारे जो एग्रीकल्चर है उसमें हायर प्रोडक्शन करने के लिए प्रोटीन रिवोल्यूशंस कहा गया है, बिकॉज वी शुड कल्टिवेट द प्रोटीन बेस्ड फूड आइटम्स फॉर आवर कंट्री एंड पीपल। देन लास्ट वन इज ग्रे रिवोल्यूशंस, उसको लिया गया है फर्टिलाइज़र। इट हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम 1960 to 1970 एंड दिस मीन्स वी शुड यूज फर्टिलाइज़र इन आवर एग्रीकल्चर एज वेल एज इन आवर other productive field like egg, chicken, all those kinds which are not harmful for our life. हमारे लाइफ के लिए कोई हार्मफुल ना हो, इसी के ऊपर ये लिया गया है। इफ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक कर दीजिए और अपनी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी कोई ऐसे छोटे छोटे वीडियो हम अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। जय भारत, जय इंडिया, जय जवान, जय किसान। हैव ए ब्यूटीफुल डे, टेक केयर।